جو باہر پبلک میں نہیں آئے کیونکہ ہمارے وہ کہہ رہے ہیں میٹنگز میں اور دیگر چیزوں میں احمد مختار صاحب پرومیننٹ کیوں نہیں ہوتے؟ دیکھیں یہ تو ایک سیاسی بات ہے کہ جی ڈیفنس منسٹر نہیں آئے، انہوں نے بات نہیں کی، اس وجہ سے چیزیں جو ہیں وہ کنٹرول میں نہیں ہیں. ایسی بات نہیں ہے مشاہد صاحب. یہ آپ لوگوں کا بھی وقت گزرا تھا تو آپ کو بھی پتا تھا کہ کس قسم کی بریفنگز کہاں پہ دی جاتی تھی، اور یہ تو کم سے کم اوپن بریفنگز اور ایک جنرل ISI کا جہاں پہ ہم کبھی صرف سنتے تھے اور کبھی دیکھتے بھی نہیں تھے. اب تو چیزیں سامنے آ چکی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کی کافی ایک کارکردگی ہے جس کے اوپر I think there is a very good relation اس وقت جو ہے with the establishment, so we should be able to understand each other to make Pakistan strong. لیکن آپ اسے تنقید کا نشانہ کیوں بنا رہے ہیں اس وقت؟ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہی. I'm sorry to say یہ سیاسی صرف اپنے آپ کو politically just to gain politics and trying to make people understand کہ جی ہم آپ کے لیے زیادہ مطلب کر رہے ہیں. تو میرا مطلب جی ضرور عرض کی فرمائیے. میں مقصد صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں اپنے بھائی سے کہ مجھے دنیا میں ایک حکومت ایسی بتا دے کہ جس پہ حملہ ہوا ہو. 2 مئی کو حملہ ہوا تھا نا ہمارے پہ، اور وزیر اعظم صاحب نے مبارکبادیں وصول کی. کس سے؟ صدر صاحب نے یہاں پہ کوئی بیان نہیں دیا، واشنگٹن پوسٹ میں اس کی تعریف اور توصیف کر دی. ذرا مجھے بتائیں، ذرا غور کریں اس بات کو. اوکے، یہ بات میاں صاحب نے آج پھر پریس نہیں تو اور پھر مجھے بتائیں نا بھائی. ٹھیک ہے بتائیں. یہ آج جو صورتحال پیدا ہوئی ہے اسی حکومت کی پالیسی کی وجہ سے ہوئی ہے. ریمنڈ ڈیوس کو اگر نہ جانے دیا جاتا تو آج بہت سارے معاملات مختلف ہوتے. جنہوں نے جانے دیا وہ آپ کو بھی پتا ہے. تو بھائی بات یہ ہے کہ اگر حکومت بالکل الوف ہوئی ہے، پچھلا رونا ہی رونا تھا، حکومت اپنا کردار ادا نہیں کر رہی، اسپیس ہے جس کا جہاں پہ جی چاہتا ہے وہ اپنا کام کر رہا ہے، جس کے نتیجے میں ہر چوتھے مہینے ہم کسی سانے کا شکار ہوتے ہیں. اور ہم جب سانے آتا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں جی آپ چھوڑ دو، کوئی بات نہ کرو. بات کیوں نہ کریں؟ بات اگر ہم نہیں کریں گے تو پھر 4 مہینے بعد خدا بات کریں، لیکن بات صحیح فورم پہ تو کریں نا. میرا کہنے کا صحیح شخص سے تو کریں نا. صحیح. اچھا اوکے ٹھیک ہے، میرا یہ خالی نقصان نہیں ہوتا. اچھا دیکھیں جیسمین میاں نواز شریف کی ایک ہسٹری ہے. سنیں، ان کی ایک ہسٹری ہے کہ جب بھی اس قوم پہ برا وقت آیا، چاہے وہ نیوکلیر بلاسٹ کی صورت میں ہو، دباؤ پڑے، انہوں نے دباؤ بھی برداشت کیا اور امریکہ کی بات نہیں مانی. اور اب بھی اگر خود مختاری پہ حملہ ہوا تو آپ دیکھیں گی کہ کون کھڑا ہوتا ہے مضبوط پیروں کے ساتھ. باقی ساری باتیں ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے، اللہ نہ کرے کہ حملہ ہو، لیکن آج ایک پولیٹیکلی یونائٹڈ فرنٹ پیش کرنے کا، whether you like it or not، یہ تھا موقع جو اب بھی آپ کر سکتے ہیں. حسن نثار صاحب بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. تھینک یو ویری مچ. سینئر کالم نگار اینالسٹ حسن نثار صاحب، کس طرح دیکھتے ہیں آل پارٹی کانفرنس جس پرپس کے لیے بلائی گئی تھی وہ حل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ جس قسم کے مکالمے ہو رہے ہیں اور جس طرح پھر پاکستانی میڈیا اس کو پروجیکٹ کر رہا ہے اور پوری دنیا ہمیں دیکھ رہی ہے. ایک طرف وہ کہتے ہیں تم پہ بم ماریں گے، تمہاری تنظیموں کو بین کریں گے، تمہاری فوج خراب، تمہاری ایجنسیاں خراب، ٹیررزم میں ملوث. دوسری طرف ایک دوسرے پہ الزامات لگا رہے ہیں. دیکھیں میں تو چونکہ امریکن ایجنٹ ہوں. اچھا ٹھیک ہے جی. میرے پہ چونکہ یہ بکواس کرنے والے جتنے احمق لوگ ہیں، میں چونکہ ریئلسٹک آدمی ہوں، مجھے آپ امریکن ایجنٹ کہیں، مجھے انڈین ایجنٹ کہیں، میری صحت پہ فرق نہیں پڑتا. میرا ملک اس بری طرح برباد ہو رہا ہے کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ بھائی تم زندہ رہو مر جاؤ تو بات سچی کرو. اصل بات یہ ہے جی کہ اے پی سی کا جیسمین بات سنیں. آپ اتنی میچور ماشاءاللہ اینکر ہے، مجھے ایک بات تو بتائیں جی، ان میں سے کون ہے کوئی پلیز نام لو ذرا. مفتی محمود کا باپ، یہ جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب، اور نواز شریف کے جو باپ اور دادے، میں مائنڈ سیٹ کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو انہوں نے تو اس ملک کو یہاں تک پہنچایا ہے، یہی تو اس کے قاتل ہیں. اچھا یہی تو لے کے آئے ہیں جیسمین یہاں تک ہمیں. پلیز فار گاڈ سیک، یہ اب سولوشن بھی تو کمال کی بات ہے بھائی. ہم کیا، آپ کیا کر رہے ہو یہاں، میں کیا کر رہا ہوں یہاں، ہم تو بکواس کر رہے ہیں. ہے کیا؟ کشمیر بھی آپ کی شارگ ہے، افغانستان بھی آپ کی شارگ ہے.
न्यूक्लियर बॉम्ब भी, आपकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी भी आपकी शारक है। इस मुल्क के अवाम तो कुत्ते बिल्ले हैं, वो नहीं आपकी शारक, वो आपकी प्रायोरिटी नहीं। तो प्लीज जो मैं बात आपको रजिस्टर कराना चाह रहा हूँ, जो मैं करना चाह रहा हूँ, वो सिर्फ इतनी है मेरी बहन के यही तो वो लोग हैं जो इस मुल्क को यहाँ तक लेके आए हैं। ये आपने, मैंने, या मेरे और आपके बुजुर्गों ने तो नहीं इस मुल्क को बेचा और इस तरह अमेरिका के कदमों में रखा और लेके और फिर ठीक हो जाएंगे। ये कमाल की बात है, ये रिकॉर्ड पे रखो आप। मुझे 2-3 महीने बाद जो मैं बकवास कर रहा हूँ, मेरी बकवास मुझे सुनाना आप। ठीक है, ठीक। अच्छा, आप ये मेरे मुंह पे आप मेरे नहीं जी, मेरे वजूद पे मेरे मुंह पे लानत भेजना। नहीं, अल्लाह ना करे। हसन निसार साहब, आप समझते हैं नहीं, आप समझते हैं एपीसी नाकाम हो गई है, मतलब है आप समझते हैं एपीसी नाकाम हो गई है और सियासतदानों ने मुल्क को यहाँ तक पहुंचा दिया है, ये आपका मौकिफ है? हसन निसार साहब का यही मौकिफ था, वो ये कह रहे हैं कि ही इज ऑल्सो डिसअपॉइंटेड, वो ये कह रहे हैं कि इन्होंने हमें यहाँ तक पहुंचा दिया है और यही उनका मौकिफ है। एक छोटा सा मैं वक्फा ले लेती हूँ, उसके बाद साहब से मैं बात करूंगी और मीर आमिर अली मगजी साहब से भी मैं इसका पॉइंट ऑफ व्यू लूंगी, बट राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। और जैसे कि आप जानते हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ आप देख रहे थे, इस्लामाबाद में ही ब्लू एरिया में एक धमाका हुआ है। बताया जा रहा है, जो अब तक तफसीलात आई हैं, कि सिलेंडर के फटने की वजह से वहाँ पर एक धमाका हुआ है, जिससे काफ़ी गाड़ियों को भी नुकसान पहुँचा है, बिल्डिंग को भी और लोगों को भी, लेकिन अल्लाह ताला ने सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखा है, सो शुक्र हो गया। कम जानी नुकसान हुआ है, ऐसी कोई ख़बरें नहीं आई कि फॉर्चुनेटली, शुक्र अल्लाह ताला का, कि खुदा न खास्ता कोई सुसाइड बॉम्ब था या ऐसी कोई बात थी। एपीसी, जैसे मैंने आपको जो कहा, आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जारी थी। मैं अपने गेस्ट का थैंक यू करना चाहूँगी, इतनी देर से दे वो वेटिंग। आमिर मगजी साहब, ब्रेक पे जाने से पहले हसन निसार साहब जो थे, उन्होंने कुछ बातें कही थी, वो कुछ कहते कहते कह भी गए और कहते कहते रह भी गए, लेकिन उन्होंने कहा ये सब कुछ जो किया धरा है इन्हीं हुकूमतों की वजह से है, लेकिन बहरहाल इससे बालातर होके अब आपको कोई प्लान बनाना होगा, रियलिस्टिक प्लान्स बनाएं जिन पे आप अमल कर सकें। बिल्कुल जी, रियलिस्टिक प्लान तो यही है कि जी पार्लियामेंट में जो करारदाद इंशाल्लाह ताला जो सेकंड हमारी थर्ड को आ रहा है सेशन, आई थिंक ये चीज़ इसके अंदर हाईलाइट होने वाली है, एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ द मेंबर्स एंड ऑपोजिशन इज़ गोइंग टू हाईलाइट दिस, जो आज एपीसी में हुआ है, और इसको हम लोग एंडोर्स करेंगे और उसको आई थिंक लेटर एंड स्पिरिट में हम लोग को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। इट्स अबाउट टाइम कि हमारी एक वॉइस जो पार्लियामेंट है, जिसमें एवरीबडी इज़ इन्वॉल्व इन इट, and we should just tell the world, and the world means the United States, कि जी this is what we mean. If they expect us बार-बार कर do more, we have done our job now. तो एड अगर वो बंद करते हैं, बिल उसने उन्हें पास कर दिया। इमरान खान साहब की भी कुछ बातें आपसे शेयर करूं। मुशाहिदुल्लाह खान साहब, आप भी थैंक यू वेरी मच। मुझे पता है आपकी एक और कमिटमेंट है, मैं सर आपको ज्यादा देर नहीं रोकूंगी, बट थोड़ा सा गुफ्तगू में जरा शामिल हो जाएगा। एक तो हसन निसार साहब ने कुछ बातें सुना दी उस हवाले से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं ये पूछना चाहती हूँ कि उन्होंने जो पॉइंट आउट किया जिस तरफ की यूनिटी का, अनफॉर्चुनेटली एक दफा फिर यूनिटी का अभी तक जो एक पैगाम जाना था वो नहीं जा सका। इमरान खान साहब जिस तहरीर पे दस्तखत नहीं कर रहे थे, उसकी भी मेरे पास कुछ इत्तलात पहुंची हैं, उनका मौक़िफ़ जो है वो भी मैं आपसे शेयर कर लेती हूँ ताकि आप जवाब दे दें। उन्होंने एक तो कहा है कि जी एड लेना बंद कर दें, क्योंकि कशकोल अगर आप तोड़ देंगे तो हो सकता है कि वो आपका सर ना फोड़ें और आपकी जान भी छोड़ दें। दूसरा उन्होंने ये कहा है कि जो मिलिट्री आपने सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश की है वजीरिस्तान और दीगर इलाकों में, वो फेल हो चुका है, ट्राइबल एरियाज में बातचीत से काम लिया जाए। ये 2-3 पॉइंट हैं जो इमरान के हवाले से मेरे तक पहुंचे हैं। क्या कहेंगे सर आप? जी, मैं वो अपना हसन निसार साहब की बातों पे तो कुछ नहीं इसलिए कहना चाहता कि वो आलम बाला की सैर कर रहे थे, तो आलम बाला में जो शख्स होता है वो उसकी बातों का क्या जवाब दिया जा सकता है। ठीक सर, माजरत में गलत वक्त पे कॉल ले ली। हाँ, बाकी बात ये है कि उनकी बातों से मुझे इत्तेफाक नहीं था कुछ बातों से, लेकिन बहरहाल उन्होंने बातें कर ली हैं। कुछ से था क्या? कुछ से था, कुछ से नहीं था तो किन से था? कुछ से था यानी कि जी, कुछ आपने कहा ना कुछ बातों से इत्तेफाक नहीं था, तो उनकी कुछ बातों से इत्तेफाक था।
नहीं, उनकी बातें वो तो ऐवान है, वो जो मैंने कहा ना सारी बातों से इख्तिलाफ है, उसकी बातों का ये वो लोग जवाब दे नहीं सकते जो जमीन पे बैठे हुए होते हैं, तो जाहिर है उनको उन्होंने कर ली है। चलें आगे बताएं। जो इमरान खान उन्होंने भी जो बातें की हैं उसमें सब्सटेंस नजर आता है कहीं कहीं, और ये इसीलिए शायद लोग इकट्ठे हुए हैं। और असल बात देखें, मैं ये बात करना चाहता हूँ कि इस वक्त अमेरिका को ये बताने की ज़रूरत है कि वो हमने जितनी कुर्बानियाँ दी हैं इस सो कॉल्ड वार अगेंस्ट टेरर में, ये अमेरिका और नेटो ने मिल के भी नहीं दी। और इतनी बड़ी अजीम कुर्बानियों के बाद अगर वो हमारे साथ ये हशर कर रहा है और वो अपनी हार जो अफगानिस्तान, देखें मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये जो जंगें होती हैं ना, जंगों में कभी फौजें जीता नहीं करती। हाँ, ये जरूर होता है कि किसका कम नुकसान हुआ, किसका ज्यादा नुकसान हुआ, सही बात, लेकिन नुकसान का मतलब यह है कि आप दोनों हार गए हैं। तो अमेरिका को ये बात समझनी चाहिए कि आज तक उसने जितनी जंगें लड़ी हैं सब हारी हैं, ये भी वो जंग हार रहा है। और वियतनाम में जब हारा था तो उसने जो लाओस और कंपोचिया का हल किया था वो पाकिस्तान का वो करना चाहता है, और पाकिस्तान ना लाओस है ना कंबोडिया है, और उसे अपने यानी कि ये जो इक़दामात हैं उस पर गौर करना चाहिए। और अगर इस तरह का वो सलूक करेगा तो दुनिया देख रही है, हो सकता है कि वो सुपर पावर है, बहरहाल लोग बात ना करते हों, लेकिन उसको इस बात पे गौर करना चाहिए कि क्या उसकी पॉलिसी से न सिर्फ अमेरिका को बल्कि उसके अवाम को भी नुकसान पहुंच रहा है। 3000 बिलियन डॉलर से ज़्यादा वो सिर्फ चाइना से कर्ज ले चुका है, और इकोनॉमी उनकी भी ठीक नहीं है। अगर हमारी तो खैर पहले ही ठीक नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद हमने इतनी कुर्बानियाँ दी हैं। लेकिन इसके साथ ही हमें ये अभी अच्छी बात की मक्सी साहब ने कि लेटरल स्पिरिट, आज जो भी फैसले उस पर अमल दरामद होना चाहिए। असल में रिजर्वेशन ही यही है कि आप इकट्ठे बैठते हैं, इतनी बड़ी डेलिब्रेशंस होती हैं और उसके बाद उसको बेतौकीर किया जाता है। अगर बेतौकीर नहीं करेंगे तो इनकी इज्जत बढ़ेगी, और अगर बेतौकीर करेंगे तो फिर जिल्लत की गहराइयों में जाने से कोई नहीं रोक सकता। और वो है ना कि डूबते सूरज को वक्त शाम देख, हुस्न वाले हुस्न का अंजाम देख, तो अंजाम फिर अच्छा नहीं होगा। मियां शहबाज शरीफ साहब ने भी अमेरिका से एड न लेने का ऐलान जो है वो किया था, उस हवाले से आप क्या कहेंगे? मतलब एड ही बस हमारी एक मुश्किल है, एड के अलावा हमारे हमारा एक और भी अलमिया है। मैं ये पूछना चाहती हूँ, थोड़ा सा वक्त अगर मुझे आप दें, कि हम कभी भी तवाज़ुन नहीं रखते।